Hello everyone, welcome back. So we have to start with MG Narega, right? MG NREGS. Okay, so there are 5 people watching. कितने हम total? I think we are 12, 13, right? Please drop in a message to the others. एक बार message कर दो. We'll start with features of MG NREGS. 3 parts से important है. Feature, pros और cons. Positive और negative. यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स एमजी एनआरईजीएस में उस पर ध्यान देना है, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करेगा ये प्रीलिम्स के लिए. तो क्या करेगा, एक फीचर उठा लेगा और फिर स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा दूसरे में, और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है डेटा में. तो स्टैटिक प्लस डायनामिक का कॉम्बिनेशन ऐसे देता है. स्टार्ट करते हैं फीचर्स से. पहला फीचर जो है वो ये है दैट दिस स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम इज बैक्ड बाय एन एक्ट. इज बैक्ड बाय एन एक्ट. एक्ट का नाम क्या है? एमजी नरेगा. MG Narega, which means there is right to employment. Right to employment. या मैं क्या कह दूँ, right to work. Right to work. So there is legal backing for the scheme. Legal backing for the scheme. And MG NREGS, right, or Narega basically, Narega says that the act says that I will provide legal guarantee of 100 days of employment. Of 100 days of employment to an adult member of every rural household. To every rural household, provided that the member is willing to do manual unskilled labor. Provided that the member is willing to do manual unskilled labor. Which means there is no legal guarantee on 101st day, and also the scheme would benefit not just poor but also
every rural household. And I know that majority of households in our country are in rural areas and face poverty, which means in terms of targeting, the scheme is very well targeted, as it is not only focusing on poor, क्योंकि पॉवर्टी तो जैसे एक स्टेट है ना, पॉवर्टी इज मोर लाइक अ स्टेट, और वो कभी भी आ सकती है. तो स्कीम इज वेरी वेल टारगेटेड कि कभी भी अगर पॉवर्टी फेस करेंगे रूरल हाउस होल्ड्स, दे कैन सिंपली एंटर एज अ बेनिफिशियरी इनटू द स्कीम एंड दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम. सेकेंड फीचर जो निकलता है, सेकेंड फीचर बेसिकली कम्स फ्रॉम द एस्पेक्ट, what if this benefit is not provided? What if the benefit is not provided? मतलब जो हम कह रहे हैं लीगल गारंटी है 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट की टू एन एडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड. वॉट इफ दिस इज नॉट प्रोवाइडेड? तो यहाँ प्रोविजन है, if after 15 days of registration under the scheme, the worker is not provided with work, then he or she is entitled to unemployment allowance. सिंपल. अगर नहीं दिया काम तो कहीं ना कहीं आपको अलाउंस देना पड़ेगा, उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा. और ये देगा कौन? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. अब ये क्यों किया है? स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहरा रहे हैं? So using this clause, we are bringing in the responsibility of the states. And the reason is very simple, because in the earlier schemes, state governments did not designate public works. They did not allocate public works, and thereby jobs were not created and funds were not utilized. Now, earlier there was no penalty on the states. States, even if they don't allocate public works, they were not being penalized. But now, if the states do not allocate work and if the jobs are not created, the states would have to bear the component of unemployment allowance, and thereby this brings in the responsibility of the states, which means they will allocate work and they will help the center to basically create more jobs. तो ये अपने आप जो है चेक और बैलेंस है. दिस इज मोर लाइक अ चेक एंड बैलेंस ओवर द स्टेट्स, राइट? वही मैं कह रहा था, दिस इज अ वेरी, आई मीन द ड्यू डिलिजेंस हैज बीन कैन बी विटनेस्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्कीम. और यही ड्यू डिलिजेंस का एग्जांपल है. हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो एलोकेट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से स्कीम जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी. तो हमने कहा स्टेट्स ही बेयर करेंगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को, और डेफिनेटली अब स्टेट्स जो है वो क्रिएट करने जाएंगी जॉब्स. फिर आता हूं मैं थर्ड पर. थर्ड इज रिगार्डिंग टाइप और नेचर ऑफ वर्क. टाइप और नेचर ऑफ वर्क क्या है? द स्कीम लेज स्पेसिफिक एम्फेसिस on those works
related to natural resource management. Natural resource management. Natural resource management जैसे कि preventing soil erosion, droughts, providing irrigation facilities, स्मॉल कैनाल्स डिग अप कर देंगे, चेक डैम्स बना सकते हैं. So all of this will be created, and thereby the scheme itself says that the permanent solution to Indian poverty will not be MG Narega but will come from एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली. तो स्कीम कह रही है कि मैं बस टेम्पररी हूं, मैं बस फॉर द टाइम बीइंग हूं. जो परमानेंट सोल्यूशन आपका निकलेगा पॉवर्टी के लिए वो तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर रिवैम्प होने से ही निकलेगा. तो जो एग्रीकल्चर को बूस्ट करे, एग्रीकल्चर को जो रीइंफोर्स करे, एग्रीकल्चर को जो स्ट्रांग बनाए, दैट इज समथिंग दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री. ठीक है. फोर्थ आता हूं इम्प्लीमेंटेशन पर. implementation में, right, you will find in all the earlier schemes bureaucracy was playing a major role. And they were the ones responsible for wage employment schemes. सबसे सिंपल एग्जांपल है तो डीएम का ले लेते हैं. इसको बिठा दिया ले जाके, इसको बोल दिया कि आप देखोगे, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क्स दैट आर बीइंग एलोकेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्रिंगिंग इन लेबर एंड प्रोवाइडिंग देम विद वेजेस. और आइडियली देखिए तो ब्यूरोक्रेसी कितने टाइम के लिए रहता है, डीएम कितने टाइम के लिए रहता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो तो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है. 6 महीने, 1 साल, 2 साल मैक्सिमम. तो कहीं ना कहीं राइट इशू क्या उठेगा, इशू उठेगा यहाँ पर कि डीएम को तो पता ही नहीं, ही डजंट नो एज टू व्हाट इज द नीड ऑफ द रीजन, ही डजंट नो अबाउट द नीड्स ऑफ द रीजन, and thereby he will basically allocate works, he will look into works, right, which are not specific to those areas, which are not, I mean, village specific problems को resolve नहीं कर रहे हैं. For example, जैसे maintenance of public offices, हर साल उसमें जो है कुछ ना कुछ काम करा लेते हैं, उसमें एक्सटेंशन करा लेते हैं. ठीक है. जबकि नीड क्या है, नीड में भी ऑफ अ लेट्स से वाटर रिजर्वायर, और ये तो रह जा रहा है. सो अंडर द न्यू स्कीम, अंडर एमजी नरेगा, व्हाट वी हैव डन इज अंडर एमजी नरेगा 50% of the responsibility is in the hands of the state. Sorry, is in the hands of the gram panchayats. Is in the hands of the gram panchayats. That is, they would suggest how 50% of the funds will be spent.
See, two things happen here. A, village specific problems or region specific problems get resolved. Problems or infra, I should say, infra gets built or resolved. And second, Panchayati Raj institutions, they get a boost. They get a boost. Boost in the sense that financial ambit or financial powers ambit has increased of Gram Panchayats. Which means Gram Panchayats will start understanding their role that at the localized region, they are the ones who are sitting closer to the people, and thereby they should be the ones who should be in charge of the welfare of the people. मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको यही चीज कही है कि जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? गवर्नेंस सेंटर में से आप उसके पास जाओगे जो आपको मिलेगा, जिसको जो आपकी बात को सुन पाएगा. तो डेफिनेटली वेलफेयर के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए. और अगर इनकी फाइनेंशियल पावर्स के एम्बिट को फाइनेंशियल पावर्स को बूस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली ये जो है बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगी. और इसके लिए प्रोविजन भी क्रिएट किया. गवर्नमेंट सेज दैट पंचायत्स कैन टेक द हेल्प ऑफ district level panchayats, government departments, NGOs, depending upon the nature of the work. सिंपल. तो मल्टीपल प्लेथोरा में परफॉर्म कर सकते हैं. यहां पर इशू ही नहीं आएगा कभी भी. और जिससे चाहे उससे हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास डिमांड बेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. डिमांड बेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. Now see, what happens in MG Narega is that the center allocates funds every year in its budget. जब बजट बनाएगा तो लिख देगा कि MG Narega में इतना allocation किया है, right? लेकिन ये funds available कब होंगे? These funds will be made available when demand from it is generated from below. बिलो का मतलब ग्राम पंचायत. व्हेन डिमांड फ्रॉम इट इज जनरेटेड फ्रॉम बिलो, मतलब हो क्या रहा है? ग्राम पंचायत भेज रही है कि सर हमें प्रोजेक्ट बनवाना है, हमें इतना एलोकेशन कर दीजिए, और तुरंत फंड्स अवेलेबल हो जा रहे हैं. तुरंत फंड्स अवेलेबल हो जा रहे हैं. इससे क्या होगा? देयर विल बी डिमांड बेस्ड जॉब क्रिएशन. देयर विल बी डिमांड बेस्ड जॉब क्रिएशन which would result in higher number of households able to avail the benefits. और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज इसकी, this results in self targeting under the scheme. देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेल्फ टारगेटिंग. सेल्फ टारगेटिंग का मतलब क्या है? किसी भी हाउस होल्ड में अगर इनकम लेवल्स ड्रूप करते हैं, इनकम लेवल्स नीचे जाते हैं, इनकम लेवल स्टार्ट गोइंग डाउन, तो उस हाउस होल्ड में से कोई भी एक अडल्ट मेंबर आएगा और कहेगा ग्राम पंचायत को कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अंडर एमजी नरेगा, एंटर माय नेम इनटू मस्टर रोल्स. एंटर माय नेम इनटू मस्टर रोल्स. मस्टर रोल्स क्या है? बेसिकली रोल कॉल रजिस्टर है. रोल कॉल रजिस्टर है, जैसे वो अटेंडेंस होता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर स्कूल में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है ये. मस्टर रोल्स में मेरा नाम एंटर कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो. जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तुरंत क्या हुआ? स्कीम में बेनिफिशियरी आप बन गए. द मोमेंट हिज नेम इज एंटर्ड इनटू मस्टर रोल्स ही बिकम्स अ बेनिफिशियरी. अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है क्या? स्टेट की कहीं पर भी स्टेट दिख रही है क्या?
नहीं, हमें तो लोकलाइज रीजन पर ग्राम पंचायत दिख रही है बस। कोई भी स्टेट का ऑफिशियल दिख रहा है क्या? डीएम, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ठीक है, हमारे पास पटवारी होता है, कोई भी दिख रहा है इसमें स्टेट लेवल से कोई भी इन्वॉल्व? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्कीम में सेल्फ टारगेटिंग का कंपोनेंट है। बेनिफिशियरी जब चाहे वो अपना नाम एंटर करा सकता है, जब भी वर्कर चाहे मेरे को बेनिफिशियरी बनना है अपना नाम एंटर करा सकता है, जब चाहे वो स्कीम से बाहर एंटर आउट, इसके बाहर जा सकता है। इसको बोलते हैं सेल्फ टारगेटिंग। मतलब आपके पास बेनिफिट हमेशा अवेलेबल है, आप जब चाहो उसको अवेल कर लो, आप जब चाहो उसे अवेल कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट आता हूं मैं नेक्स्ट इसमें सिक्स्थ फीचर पे, इक्वल मिनिमम wages to both men and women, to both men and women, and these wages will be adjusted for inflation. जैसे ये वेज रेट्स अभी 182 थे कुछ टाइम पहले तक, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? ₹202 कर दिया गया। तो इसमें आप इन्फ्लेशन और जोड़ दो। कौन सा इन्फ्लेशन? सीपीआई रूरल, सीपीआई रूरल। और स्पेसिफिक चाहिए तो उसी स्टेट का जोड़ दो, उससे आपको क्या मिल जाएगा? अलग अलग वेजेस मिल जाएंगे, किस रीजन में कितना वेज देना चाहिए। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन आता है मेरे पास, सेवेंथ प्रोविजन, provision of social audit under the scheme. Provision of social audit under the scheme. सोशल ऑडिट का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एनआरई, सॉरी एनआरई जीएस अकाउंट्स, एमजीएनआरई जीएस अकाउंट्स, or rather I should say muster rolls, muster rolls on a periodic basis, periodic basis by anyone, by anyone मतलब बेनिफिशियरी खुद आके ऑडिट कर सकता है। पहले क्या था? पहले प्रोविजन था कि ग्राम सभा ऑडिट कर सकती है। अब ग्राम सभा में तो सबको ही आते हैं, इलेक्टोरल है बेसिकली वो तो। अब क्या कर दिया हमने? हमने कह दिया ग्राम सभा में से कोई आ जाए या फिर कोई एनजीओ आ जाए, इंडिपेंडेंट रिसर्चर कोई आना चाहता है वो ऑडिट कर सकता है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स तो सबको एम्बेट में डाल दिया है और कह दिया है कि सर जब भी आपका ऑडिट हो जाए, द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सेंट टू, ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। And trust me, this has become a very powerful tool because this has added the component of transparency into the scheme. इससे हुआ क्या है सोशल ऑडिट से? This has added the component of transparency which has resulted in more accountability. मोर अकाउंटेबिलिटी मतलब अब हमारी स्कीम जो है वो ऑन पेपर ही एग्जिस्ट नहीं करती है, वो रियल सेंस में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। और ये है बेसिकली हमारे पास फीचर्स स्कीम के। तो ये 7 फीचर्स हमेशा याद रखें, ये 7 फीचर्स ही बेसिकली इसका क्रक्स बनाएगा आंसर का। और वही नीड के हिसाब से लिखना है। अगर वो सोशल ऑडिट पे फोकस कर रहा है तो इसको 1 पे ले जाना, अगर वो फोकस कर रहा है ज़्यादा वेलफेयर पर तो इक्वल वाला प्रोविजन और 100 डेज वाला प्रोविजन लिख देना, फर्स्ट और सिक्स्थ। फिर डिमांड बेस्ड फंड अवेलेबिलिटी की बात करना, तो नीड के हिसाब से क्वेश्चन कैसे कह रहा है उसके हिसाब से आपको घुमाना पड़ेगा आंसर को।
अगर यहाँ तक फीचर्स तक क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो, जो भी फीचर क्लियर ना हो वो पूछ सकते हो आप। बाकी लोग, 5 लोग ने लिख दिया, क्लियर नहीं हुआ? हाँ रेवती बिल्कुल कर सकते हैं, एस जी से लेट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितना रिलेटिव लिख के आओगे और जितना आंसर में डाल के आओगे उतना ही बेटर बनेगा आंसर। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ अप्रेजल पे। अप्रेजल मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों की बात करूंगा। ठीक है, पहले बात करता हूँ नेगेटिव्स की। डिमांड बेस्ड फंड का मिसयूज हो सकता था क्या, हुआ है। ठीक है विशाखा, मिसयूज कैसे हुआ है वही नेगेटिव में यही बात करूंगा मैं। कहाँ गए यहाँ पे। तो डिमांड बेस्ड फंडेबिलिटी में क्या हुआ, ग्राम पंचायत में मस्टर रोल्स में फजिंग हुई। मस्टर रोल्स में फजिंग की गई। मस्टर रोल्स में एक ही आदमी का नाम, मतलब रामू जो है वो, उसका नाम जो है 200 बार लिख रखा है और उसके नाम से फंड्स मंगा के अपने पास ही रख लिए। तो बिल्कुल फजिंग हुई है। ठीक है, लेकिन उसको आप इम्प्रोवाइज करते हो, आप बेसिकली सिस्टम को इम्प्रोवाइज करते हो। आप ये नहीं कहते कि नहीं डिमांड बेस्ड फंड अवेलेबिलिटी गलत है, आप ये कहते हो कि हमने यहाँ पे लूप होल छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर कमी है किसी प्रोविजन की, चेक और बैलेंस की। अगर हम इसमें कोई और एक फीचर ऐड कर दें तो शायद ये इम्प्रोवाइज हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या किया हमने यहाँ पर। तो पहले ही चैलेंज लिख लेता हूँ, फजिंग इन मस्टर रोल्स। फजिंग इन मस्टर रोल्स, फजिंग मतलब धांधेबाजी। तो क्या हो रही है धांधेबाजी कि बेसिकली एक ही इंडिविजुअल का नाम मल्टीपल टाइम्स फीचर कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स फीचर कर रहा है। तो एक ही आदमी का नाम मल्टीपल टाइम्स फीचर कर रहा है। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या करो, अब इनके अकाउंट नंबर्स दे दो, बैंक अकाउंट नंबर्स, और पैसा जो है वो सीधा बैंक अकाउंट में ही आएगा। द मनी विल कम डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी के पास आएगा बैंक अकाउंट में, पंचायत के थ्रू नहीं आएगा, पंचायत के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल का एक ही बैंक अकाउंट होगा, एक ही बैंक अकाउंट होगा। और बैंक अकाउंट कैसे होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन से होता है। और सारे के सारे अकाउंट्स आप लिंक भी कर देते हो कि इंडिविजुअल एक ही है। अगर इसके चार अकाउंट भी हैं, अगर इसके चार अकाउंट्स भी हैं तो भी कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि डिटेल्स तो सेम ही है इसकी, डिटेल्स तो सेम ही है। ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने डायरेक्टली कहा कि बैंक अकाउंट में पैसा आएगा बेनिफिशियरी के, और ग्राम पंचायत के थ्रू पैसा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत के थ्रू पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्टली इसके बैंक अकाउंट में आएगा पैसा। और बैंक अकाउंट कैसे बनता है, केवाईसी के थ्रू। केवाईसी में सारी डिटेल्स दोगे, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी होंगे तो उनको आप लिंक कर दोगे साथ में, मतलब पता लग जाएगा कि एक बेनिफिशियरी ही है, चार अकाउंट दे रखा है, सबको मर्ज करके कहोगे कि एक ही है, इसलिए पैसा जो है वो तो एक ही बार आएगा। तो बेनिफिट जो है, बेनिफिट विल ओनली कम वंस। तो आपने जो मल्टीप्लिसिटी की प्रॉब्लम थी उसको तुरंत रिमूव कर दिया। और ये जो आइडिया है,
ये जो आइडिया है ये बेसिकली एक पॉजिटिव से निकला है। पॉजिटिव है किसका वही बता देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है समथिंग दैट वाज डन बाय अ साउथ इंडियन स्टेट, राइट। स्टेट है हमारी स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने क्या किया? आंध्र प्रदेश ने कहा कि पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स खोलते हैं। लेट्स ओपन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स ऑफ every beneficiary whose name is registered in muster rolls, so that money can directly come into their post office accounts, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। तो क्या किया, पोस्ट ऑफिस वालों को बोल दिया कि आप साइट पे आके बैठ जाओ और सबके अकाउंट खोलो, सबके अकाउंट नंबर जनरेट करके लिस्ट बना के हमें दे दो नाम के साथ, और हम जो है मस्टर रोल्स में इन बैंक अकाउंट नंबर्स को ऐड कर देंगे। वी विल ऐड दीज अकाउंट नंबर्स इन द मस्टर रोल्स इटसेल्फ। इससे क्या होगा, डायरेक्टली फंड्स का डिसिपेशन यहीं से शुरू हो जाएगा, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So they started making wage payments through post offices, which became a role model. This became a role model for all the states. तो पैन इंडिया इसको रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट किया गया, और आज की डेट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है, बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ही पैसा आएगा। तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी, इस सिस्टम के थ्रू वेजेस आएंगी, सिंपल। तो ये था पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में लिख देना साइड में। समझ में आया पहला प्रॉब्लम? हाँ या ना? यस या नो लिख दो प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आता है, स्कीम इज नॉट टारगेटेड वेल। स्कीम इज नॉट टारगेटेड वेल। स्कीम इज नॉट टारगेटेड वेल, वो ट्रांसफर कर रहे हैं बेनिफिट को। आवाज आ रही है ना सबको? मैं रिपीट कर रहा हूं अपना पॉइंट। मैंने कहा स्कीम इज नॉट टारगेटेड वेल, scheme is not targeted well, that is the poorer states like Bihar, UP, Odisha, Jharkhand, we found many inconsistencies. Many inconsistencies like many beneficiaries were not aware of the scheme. Many beneficiaries were not aware of the scheme. And surveys showed this. Survey said that even if they knew about the scheme, they did not knew about legal guarantee provision. They did not know about legal guarantee provision. लीगल गारंटी मतलब उनको पता ही नहीं कि 100 डेज का लेबर तो मिल ही रहा है, हमें 100 डेज का वर्क तो मिल ही जाएगा। और लीगल गारंटी नहीं पता तो कहीं ना कहीं वेज रेट्स भी नहीं पता है उन्हें, वेज रेट्स भी नहीं पता है। तो यहां पर मेजरली प्रॉब्लम आई इन स्टेट्स में जहां पर बेनिफिशियरीज अवेयर नहीं थे, और स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट टेक मेजर्स टू रेज अवेयरनेस। State government did not take measures to raise awareness amongst the beneficiaries, और ये मेजर प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा इन स्टेट्स में जहां पर यूटिलाइज होनी चाहिए थी स्कीम, जहां पर सबसे ज्यादा नीड थी, वहां पर हमें कुछ खास हमें जो है एंथुजियाज्म नहीं दिखा। ठीक है, गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि
सेंटर और स्टेट की बात नहीं है, दिस इज मोर अबाउट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द पब्लिक, प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द पुअरेस्ट population which basically faces a lot of challenges in terms of livelihood, उनके लिए है। तो यहाँ पर वेलफेयर की स्टोरी है, दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल गेम। ठीक है, ट्रू सेंस में कहूँ तो इकोनॉमिक अभी तक हमने इवैल्यूएट ही नहीं किया। इकोनॉमिक सेंस में अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक है थर्ड प्रॉब्लम जो आती है, दैट दिस रिजल्टेड इन हायर इन्फ्लेशन wherever it was। हाँ, मेरे एंड पर ही भी बफरिंग हो रही है, मुझे ही बफरिंग हो रहा है। चलो अब वापस आ गया ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि जहां पर भी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया वहां पर हमें हायर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिला, हायर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिला। ठीक है, और इन्फ्लेशन मुझे पता है दो तरीके का होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश कैसे? आई नो अ लॉट ऑफ लेबर बेसिकली ट्रेवल्स फ्रॉम बिहार टू एरियाज इन बिहार एंड यूपी टू एरियाज इन हरियाणा पंजाब during two times sowing and harvesting. Now because of MG Narega, these people they will not travel, they will not travel, in fact होगा क्या, this will almost be like reverse migration of sorts। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो लोग पहले से यहाँ प्रेजेंट हैं हरियाणा पंजाब में, घर से फोन आएगा कि यहीं पर काम मिल जा रहा है तो ये लोग वापस चले जाएंगे, दे विल नॉट स्टे इन दीज रीजन्स। तो रिवर्स माइग्रेशन ऑफ सॉर्ट्स होगा, विच मीन्स देयर विल बी पॉसिटी ऑफ लेबर in Haryana and Punjab for sowing and harvesting, which will result in higher cost of labor, higher cost of labor for farmers in Punjab and Haryana। हायर कॉस्ट ऑफ लेबर का मतलब फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज किया, फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। डिमांड पुल कैसे होगा? डिमांड पुल तो सिंपल है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है। आई होप इन्फ्लेशन तो याद है सबको। ठीक है, और इन्फ्लेशन और क्यों हो रहा है, एक और रीजन था। इन दी अर्लियर स्टेजेस, in the earlier stages majority of the problem was that we were creating unproductive assets, unproductive assets। unproductive assets का मतलब सरकार ने बोला गड्ढा खोद दो, 6 महीने तक लग के गड्ढा खुदवाया, फिर अगले 6 महीने बोला सॉरी गड्ढा खुदवाया ना तो मिट्टी बाहर निकली, ये पाइल बन गया यहाँ पर, फिर अगले 6 महीने बोला इसको वापस भर दो, इसको वापस भर दो मिट्टी से। तो ये अनप्रोडक्टिव एसेट्स है। इससे हो क्या रहा है, रियल प्रोडक्शन, रियल प्रोडक्शन is let's say 5%, but correspondingly increase in money supply, increase in money supply is let's say higher, which is let's say 10%, which is let's say 10%। और अगर मनी सप्लाई रियल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, दिस विल अगेन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये जो प्रॉब्लम थी अनप्रोडक्टिव एसेट्स की, इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। रिजॉल्व कैसे किया वो भी ध्यान से सुनना। रिजॉल्व किया गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर
स्टेट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं और मैकेनिज्म है मेजरमेंट का। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर भी व्हाट वी डू इज वी बेसिकली फॉर्मुलेट रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या करते हैं, रिपोर्ट में हम दो चीजें लिखते हैं। रिपोर्ट में हम लिखते हैं असेट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसकी, एंड वी कंपेयर इट विद द मनी दैट वाज यूज्ड टू बिल्ड इट। इससे होता क्या है, इससे कंपैरिजन होता है कि क्या हमने रियल सेंस में असेट क्रिएशन किया है या फिर ये लॉस मेकिंग प्रपोजल रहा है, लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन रहा है। और इससे कहीं ना कहीं बैलेंस रिस्टोर हुआ है स्कीम में। ठीक है, तो तीसरा याद रहेगा। तीसरे में हमने क्या किया है, हायर इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्ट पुश डिमांड पुल, वो तो होना ही था, इसके लिए तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजॉल्व कर सकते थे वो ये था, तीसरा वाला अनप्रोडक्टिव एसेट्स वाला, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, फोर्थ, ये प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग द मटेरियल रेशियो। मटेरियल रेशियो प्रॉब्लम क्या है, when we were making assets we found a lot of time these assets, they were washed down by rivers, they were washed down in rains, and we found substandard quality of material is being used. Substandard quality of material is being used. And see, this is a very good example of how bureaucracy works. And I think I've repeated this multiple times that if you become an officer, your instructions should be clear cut. Because if there is ambiguity in your instructions, the lower bureaucracy will basically use it as a shield to not do the work, to not to perform. Right? बोल देंगे सर आपके क्लियर नहीं थे, आपने ये कहा था, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो यहां देखना कितना बढ़िया एग्जांपल मिलता है इसका। हमने क्या किया था, हमने वेज इज टू मटेरियल रेशो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रखा था 60:40, 60:40। अब 60:40 का मतलब ये है कि जो भी टोटल कॉर्पस है, टोटल अमाउंट जो भी है, उसका 60% पैसा वेज में जाना चाहिए, क्योंकि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और उसका 40% पैसा मटेरियल में जाना चाहिए। लेकिन लोअर ब्यूरोक्रेसी ने क्या इंटरप्रेट किया, लोअर ब्यूरोक्रेसी ने इंटरप्रेट किया कि मटेरियल में कम से कम पैसा लगाना है। बता रहा हूँ लोअर ग्रेड ऑफिसर ने क्या इंटरप्रेट किया। अब ठीक है ना, हाँ या ना पहले जवाब दो। ठीक है, तो लोअर ग्रेड ऑफिसर ने इंटरप्रेट किया कि कम से कम अमाउंट लेना है, साहब ने बोला है, और कम से कम अमाउंट में से ज्यादातर हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर वेजेस में जाएगा, और कम हिस्सा जाएगा मटेरियल में। तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा देते हैं सर, और फाइल वर्क कर देते हैं कंप्लीट। अब ये बहे रहे उससे मतलब नहीं है। So if it stays or gets washed away, that is none of your concern. भाई सब स्टैंडर्ड लगा रहे हो तो वॉश अवे ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो प्रॉब्लम क्या आता है ब्यूरोक्रेसी में, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि नहीं मैंने टोटल कॉर्पस पे कोई नहीं लगाया बार, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को डिनोट करने के लिए केवल 60-40 रखा था, तो हमने इसको चेंज किया। अब हमने इसको कर दिया है 51:49, वेज इज टू मटीरियल रेशियो 51:49। यहां तक भी क्लियर है? इसमें एक इंप्रूवमेंट और किया हमने, इसको मैं पॉजिटिव्स में लिखता हूं। पॉजिटिव्स में पहला पॉजिटिव मैंने आपको बताया डीबीटी वाला, जो एपी ने किया, आंध्र प्रदेश ने। दूसरा पॉजिटिव क्या है? दूसरा पॉजिटिव है आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने जो दिया। स्टेट ऑफ तमिलनाडु फाउंड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ women इज वेरी लो। पार्टिसिपेशन ऑफ women इन द स्कीम इज वेरी लो। ऑब्वियसली बात है कि औरतें जो हैं वो दे विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, एंड देन देयर बाय दे विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। So what Tamil Nadu did is Tamil Nadu opened on-site crèche facilities. On-site child care facilities were opened so that women can come in and they can keep their children into these child care facilities on site. पास में ही जो है क्रेच बनवा देंगे और वहां पर बच्चा रह सकता है, जिससे कि विमेन का पार्टिसिपेशन नंबर जो है वो इंप्रूव करना शुरू किया। एंड दिस अगेन बिकेम अ रोल मॉडल, दिस अगेन बिकेम अ रोल मॉडल फॉर द कंट्री, फॉर द कंट्री। ठीक है, थर्ड पॉजिटिव हमें क्या देखने को मिला? थर्ड पॉजिटिव जो काफी सरप्राइजिंग था, थर्ड पॉजिटिव हमें देखने को मिला स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ हरियाणा में। एंड वी फाउंड द scheme was working very well in terms of implementation and providing benefit to the people. Now, ideally, if you look at these two states, Rajasthan and Haryana, in socio-economic indicators, these two states will be found at the bottom. हमेशा नीचे मिलेंगे ये दोनों स्टेट्स। लेकिन यहां पर पहली बार हमने देखा राजस्थान और हरियाणा ने जो है आउट कर दिया है काफी अच्छे स्टेट्स को, और काफी अच्छा काम कर रहा है स्कीम में। और ये दिस बेसिकली रैटल्ड ब्रेन्स ऑफ द पीपल। पर रैटलिंग की जरूरत नहीं है, या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजस्थान और हरियाणा ने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग है इन दो स्टेट्स में। पंचायत कल्चर, पंचायत सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग इन दीज टू स्टेट्स, which basically facilitated the implementation of the scheme and started providing benefit to the people. और इससे हमें बेसिकली समझ में आया कि जो हमने कहा था that PRI will get a boost is actually true. The moment they realize their powers and have the finances to execute it, PRI can work wonders. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन वर्क वंडर्स। वो जो गांधी जी वाला विजन है ना कि ग्राम जो है वो खुश हों, ग्राम जो है वो समृद्ध हों, वो डेफिनेटली जो है एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही नॉवल आइडिया है। अगर किसी तरीके से हमारे ग्राम समृद्ध है तो पूरी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चौथा जो देखने को मिला हमें इम्प्रूवमेंट, वो है NICS के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किया हुआ, सॉरी NIC ही कह देता हूं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर has developed this mechanism to verify that payments are made within 48 hours
ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए कहां से कहां तक, फ्रॉम गवर्नमेंट टिल बेनिफिशियरी, they have developed a system with checks and balances। मतलब जहां पर भी पेमेंट आके अटक जाएगा, जहां पर भी पेमेंट आगे मूव नहीं करेगा, हाँ मैं तो भी बता रहा हूँ, पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम डेवलप, एनआईसी ने सिस्टम डेवलप किया है, दैट पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू द बेनिफिशियरी wherever they get stuck, right, the mechanism will basically tell you the position, exact position and time period, for how much time period they were stuck at this point। तो इससे क्या होगा, बार बार टाइमली मैनर में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, वी नीड टू चेंज द इंफ्रा देयर, वी नीड टू चेंज द मैनेजमेंट देयर। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी जो पेमेंट सिस्टम है वो रोबस्ट हो जाएगा विद टाइम। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास अप्रेजल ऑफ एमजी नरेगा, अप्रेजल ऑफ एमजी नरेगा। वही मैंने कहा था 50 मिनट 1 घंटा लगेगा, तो वही लगा है। अब ये अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज पॉवर्टी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो अब इसमें। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद पॉवर्टी। तो देयर इज बेसिकली नो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी टिल डेट। कोई पूछ ले कि पॉवर्टी है क्या, तो पॉवर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है। पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है दैट पॉवर्टी इज बेसिकली द एब्सेंस ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स, राइट। नाउ हाउ डू यू डिफाइन बेसिक नीड्स? Basic needs is something very subjective that will vary from person to person. So it basically varies on the level that you stand at, on the level at which you are, right? Somebody who has food in his belly, somebody who has shelter, somebody who has clothing may say, sir, internet today is the most basic need. अब जिसके पास इंटरनेट भी मिल गया वो कह देगा सर मे बी गेमिंग कंसोल जो है वो मेरे लिए बेसिक नीड है। तो यहाँ कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड टू दिस लिस्ट, राइट। But for simplicity purpose, what we do is we basically consider the most basic needs on the basis of consumption patterns of the people. Consumption patterns of the people. And we look at those components without which life would be very difficult, right?
life would basically cease to exist, or life would not be with life of dignity, but rather life is going to be very challenging in nature, right? So poverty today, or in current terms, although many attempts have been made to define it, but till date, in fact, I believe that poverty is something that we will never be able to define, right? The most suitable words, or the most suitable phrase that we can use for poverty is that poverty is the absence of the most basic needs of an individual, right? And when a person faces the absence of those basic needs, I can say that a person faces a situation of poverty. He faces a situation of poverty, right? But what economists have done is, economists, they have categorized poverty into two types. First being absolute poverty, the second being relative poverty. Second being relative poverty, right? Now, what is absolute poverty? Anyone who faces absolute poverty will lack basic minimum requirements. Will lack basic minimum requirements. Minimum basic requirements like food, सबसे बेसिक तो यही है. Shelter, food, shelter, clothing, so on and so forth, right? And then I have relative poverty. Relative poverty means people who are facing this, their income levels are lower. Income levels are lower as compared to some standard parameter. Let me keep this as per person income, or per capita income in the economy. Per capita income in the economy. So their income levels are lesser when I compare it with some standard parameter. And for simplicity's sake, let me say that this is lesser than per person income in the economy. Right? So if a person faces this situation, I would say that he is facing relative poverty. And if a person is facing lack, he doesn't have the money to even purchase minimum basic requirements, I would say the person faces absolute poverty. I would say the person faces absolute poverty. Now, there are different measurements for absolute poverty, right? But there is one single measurement that we have for relative poverty, which is my Lorentz curve, right? मैंने पढ़ा है क्या लॉरेंस कर्व आपको? लॉरेंस कर्व, हाँ या ना में जवाब देना. लॉरेंस कर्व पढ़ा दिया क्या? पढ़ाया होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ में पढ़ाया होगा. बाकी लोग क्या कह रहे हो आप? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ा दी, ठीक, गुड, बेस्ट. क्या कहता हमने इसमें? हमने इसमें लिया था फ्रैक्शन ऑफ इनकम, और हमने देखा था फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, और इसको हमने मैप कर दिया था. यार ऐसे कैसे पॉसिबल है दर्शन? चार लोग कह रहे हैं नहीं, एक कह रहा है हाँ. तो पॉसिबल नहीं है ना. फ्रैक्शन ऑफ इनकम और फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, और मैंने कहा था अगर इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी है,
परफेक्ट इक्वालिटी है तो 45 डिग्री लाइन होगी, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ इनकम जो है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन पर, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन पर। Where this represents my 100% of population, this represents my 100% of income, 100% of income। पर कर्व तो ये होता नहीं है, हमें पता है। कर्व कैसे मिलता है हमें, लॉरेंस कर्व? कर्व इज डिस्टॉर्टेड, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल क्या होगा, ये हो सकता है अनइक्वल। अनइक्वल कैन बी दिस ऑल्सो। ये है इनइक्वालिटी। फाइनली लेट्स से दिस इज माय इनइक्वालिटी, बिल्कुल परफेक्ट इनइक्वालिटी कंडीशन आ गई है। So the moment I start moving away, the moment I start moving away from this 45 degree line, inequality tends to increase. और इसका measurement है G, Gini coefficient, where G is equal to area of shaded region divided by area of triangle ABC. ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये शेडेड रीजन जैसे जैसे बढ़ेगा जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो जी के लिए लिमिट क्या है, हाईएस्ट लिमिट 1 है, लोएस्ट लिमिट 0 है। और अगर मैं कर्व्स को मार्क करने जाऊं, लेट मी से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, दिस इज लेट्स से डब्ल्यू। सो आई कैन से g of x is smaller than g of y, which is smaller than g of z, which is smaller than g of w। ये था लॉरेंस कर्व मेरा। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कहां देखी जाती है, वही ना, दो चीजें, इसके दो यूटिलाइजेशन है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मैप डिफरेंट कंट्रीज in same time period, so these can be different countries, x y z w can be different Lorentz curves for different countries in the same time period. Let me keep this as 1990, or these can be Lorentz curves for a single country in different time periods, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इकोनॉमीज के बीच में भी कंपेयर कर सकता हूं, और मैं एक ही इकोनॉमी को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भी कंपेयर कर सकता हूं यूजिंग लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो अगर मैं ये पहला वाला केस करूं, डिफरेंट कंट्रीज के लिए लूं, तो हाईएस्ट इनइक्वालिटी ग्लोबली हमें देखने को मिलती है, हाईएस्ट इनइक्वालिटी मेक्सिको में, मेxico इनफैक्ट मेxico में, और अपनी कंट्री के लिए बात करें जी, तो जी बेसिकली लाइज इन द लोअर लेवल। तो जी फॉर इंडिया, जी फॉर इंडिया is close to 0.3, it's close to 0.3। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास लॉरेंस कर्व, विच इज बेसिकली अ मेजर फॉर relative inequality, relative inequality। Now let me come to measurement of poverty, where I'm trying to measure
When I'm trying to measure absolute poverty. When I'm trying to measure absolute poverty. When I'm trying to measure absolute poverty. अब ठीक है ना? ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार बताना. ऑनलाइन ठीक है. मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सबसे पहला आता है मेजरमेंट यूजिंग पॉवर्टी लाइन. यूजिंग पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इज दैट थ्रेशोल्ड. Poverty line is a threshold that separates poor from the rest. Poor from the rest of the people in the economy. Poor from the rest of the people in the economy. Right? And how do you separate them? You separate them, please remember this, on the basis of expenditure levels. See, many a times people believe that this is on the basis of income, but no, we distinguish between people, we categorize them as APL or BPL on the basis of their expenditure levels. And how do I construct this? बहुत सिंपल है. अब क्या करो, आप बेसिक नीड्स देखो. बेसिक नीड्स देखो, उन्हें क्वांटिफाई करो. जैसे कि सर आपने कहा फूड, मैंने कहा फूड इज अ बेसिक नीड. आपने कहा फूड के लिए एन इंडिविजुअल विल रिक्वायर और हाउस होल्ड विल रिक्वायर, जो भी आपका मन है, एन इंडिविजुअल विल रिक्वायर ₹X. हमने कहा शेल्टर ₹Y, क्लोथिंग ₹Z. अब क्या करें, सबको ऐड कर दें. ऐड ऑल ऑफ दीज. लेट्स से आई गेट ₹1000 per person per month. ₹1000 per person per month. और आई कैन ऑल्सो से 4 लोगों की फैमिली है तो ₹4000 पर हाउस होल्ड पर मंथ. ₹4000 पर हाउस होल्ड पर मंथ. ठीक है. अब क्या करूं, अब इसको मैं बेंचमार्क बना लेता हूं. दैट दिस इज माई ₹1000, सॉरी 4 ले लेते हैं, ₹4000 पर हाउस होल्ड per month. So any household which spends below 4,000 per month, let's say household A, I will categorize it as BPL. And any household which spends more than 4,000 per month, I will categorize it as APL. Above poverty line and below poverty line. तो सिंपल इतना सा फंडा है इसका कि सिंपली आप एक्सपेंडिचर निकालो, एक्सपेंडिचर के बेसिस पर कैटेगराइज कर दो.
कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है। अगर आपके थ्रेशोल्ड से ऊपर खर्च कर रहा है तो एपीएल, थ्रेशोल्ड से नीचे है तो बीपीएल। लेकिन इस मेथोडोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस of using poverty line method. Certain limitations of using poverty line as a method. आप बता सकते हो कि क्या हो सकता है? What can be a limitation of using poverty line to categorize households as BPL और APL? क्वेश्चन आपसे है कि लिमिटेशन क्या होंगे? क्या दिमाग में आ रहा है? लिमिटेशन क्या हो सकता है? जनरलाइज करते हैं अर्जुन, जनरलाइज करते हैं, स्पेसिफिक नहीं लेके चलते, जनरलाइज करते हैं। मान के चलता हूं हाउस होल्ड में 4 लोग होते हैं। बच्चे नहीं करो तुम, वो तुम्हारी दिक्कत है। हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं 4 होंगे। आज नहीं तो कल पैदा करोगी। ठीक है ना? लिमिटेशन बताओ फटाफट। हाँ, तो वेरिएशन के बेसिस पर तो एपीएल बीपीएल लगाएंगे। ये सही कहा तेजस्विनी ने। दैट पर्सन्स हु आर स्पेंडिंग 3900 and 4100 are differentiated and the amount gap is not that much huge. ये सही है। दिस आई अग्री विद। बहुत सही कहा है। पहला लिमिटेशन सही मिल गया हमें, बाकी भी है तो आंसर लिखते रहो अपने। पहला लिमिटेशन लिख देता हूं। कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास बीपीएल और एपीएल के बीच में डिफरेंस जो है वो बस एक लाइन मात्र का होगा, राइट? मतलब जैसे 3900 यहां हो गया और 4100 रुपीज एक्सपेंडिचर यहां हो गया। बाय द लुक ऑफ इट I have categorized it as BPL and APL, but there is not much difference in terms of standard of living of these two, right? So I say that this is a very crude way to measure poverty. So very crude way to measure poverty. Very crude way to measure poverty. बिल्कुल सही तेजस्वी ने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। This is a very crude way to measure poverty because I'm using a simple threshold. I'm using a very simple threshold, single threshold to demarcate people. To demarcate people. Whereas there might not be actual difference on ground. There might not be actual difference that much on the ground. Right? For example, in A and B, their standard of living is almost same. The standard of living is almost same. But I said that this person is not poor, whereas this one is. Right? और इसका इफेक्ट देखने को क्या मिलता है? The moment you say A is poor, A is BPL, government will bring in plethora of schemes. Government will bring in a lot of schemes to help this person out, will provide benefit
And after these schemes, A's standard of living is much better than that of B. So A's standard of living is going to be much better than that of B. तो हमने किया क्या, हमने तो बेसिकली एक्सक्लूजन कर दिया है इसके थ्रू, हमने एक्सक्लूड कर दिया बी को और बी तो रह गया. अब क्या होगा, after 10 years when you go to measure poverty again, you will find A is now sitting above the poverty line and B is become below, and this cycle will keep continuing. The cycle keeps moving on. आई होप ये क्लियर हुआ पॉइंट. दूसरा पॉइंट भी तेजस्वी ने बिल्कुल ठीक लिखा है. सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि सर अगर मल्टीपल लोग हैं, अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे मल्टीपल लोग आ रहे हैं, जैसे ए हो गया, सी आ गया, डी आ गया, और इनके एक्सपेंडिचर लेवल्स बहुत कम है, जैसे इसका 1000 है हाउस होल्ड का, इसका 2000 है हाउस होल्ड का. हमने क्या किया है, हमने ए सी और डी को एक ही बकेट, एक ही बेसिकली बास्केट में प्रेजेंट कर दिया. हमने कहा सभी के सब बीपीएल है, सबके सब बीपीएल हैं, राइट. तो बेनिफिट मिलने पर सबको इक्वल बेनिफिट दिया जा रहा है, इक्वल बेनिफिट मिल रहा है. इक्वल बेनिफिट का मतलब समझना, 3 लोग हैं अलग अलग हाइट के, ठीक है. ऑल द 3 दे बेसिकली वांट टू सी बियॉन्ड द वॉल. सभी को क्रिकेट मैच देखना है तो सभी को दे वांट टू सी बियॉन्ड दिस वॉल. और मैं क्या करूं, मैं सबके लिए बॉक्स दे दूं एक एक. तो मैच कौन देख पाएगा, मैच शायद ये देख लेगा, जैसे ए, शायद बी भी देख पाए, लेकिन सी तो रह जाएगा. क्यों, क्योंकि ये क्या सिस्टम है, दिस इज बेसिकली माय सिस्टम ऑफ इक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इक्वालिटी. जबकि मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे शायद इतना बेनिफिट निकाल के इसको देना चाहिए था सी को, इसका शायद इतना निकाल के देना चाहिए था सी को, जिसको मैं कहता हूं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एज पर नीड, एज पर नीड, सो दैट एवरीवन इज हैप्पी. इक्विटेबल में तीनों खुश होंगे, तीनों के लिए ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा. लेकिन इक्वालिटी में someone or the other will basically be left out of the system of benefits and will not be able to get the desired outcome. From governance point of view, we will not be able to get a desired outcome. So equitable distribution of resources जो है वो possible नहीं है by using the system of poverty line. By using the system of poverty line. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं because poverty line only measures incidence of poverty and not degree of poverty and not degree of poor. तो आदमी कितना गरीब है या कितने चीजों का अभाव है, कितनी चीजों की बेसिक नीड्स मिसिंग है, उसको मेजर करने नहीं जा रहा है, बस सिंपली इंसिडेंस देख रहा है, आइदर येस और नो के थ्रू डिफरेंशिएट कर रहा है, बीपीएल एपीएल में डिफरेंशिएट कर रहा है. ये नहीं देख रहा है कि कितने डिग्री से पुअर है या कितने डिग्री से अबव द लाइन है. ठीक है. तो पहला लिमिटेशन जो है वो मेजरली इज अबाउट दैट इट ओनली मेजर्स इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड नॉट डिग्री ऑफ पॉवर्टी और डिग्री ऑफ अबव पॉवर्टी, so as to have equitable distribution. Second limitation क्या हो सकता है, second limitation can be, so we are assuming that 4000 rupees
per household per month is sufficient for basic needs. For basic needs. But there is no guarantee. But there is no guarantee that when 4,000 rupees are spent, they are on the basic needs of households. अब कैसे इंश्योर करोगे कि वो 4,000 रुपए बस बेसिक नीड्स पर ही खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है ना, नॉन बेसिक नीड्स पर भी खर्च किए हों। जैसे कि अगर फैमिली में कोई लिकर पीता है तो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कहां चला गया? नॉन बेसिक नीड्स पे। तो यहां पर कोई गारंटी मैकेनिज्म तो है नहीं, गारंटी मैकेनिज्म। और अगर गारंटी मैकेनिज्म नहीं है तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे हुआ? आपने तो अपनी तरफ से कैटेगराइज कर दिया। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला बिहार में। बिहार में मेनी ऑफ द हाउसहोल्ड्स वर कैटेगराइज्ड एज एपीएल, but when you go and look at the conditions of these households, you find that they are worse than even your BPLs. बिल्कुल अंत्योदय के लेवल पर जी रहे हैं ये। अंत्योदय के लेवल पर क्यों जी रहे हैं? क्योंकि घर में कहीं ना कहीं जो है शराब की लत है, और जो बाकी फैमिली है मेल्स को छोड़ के, वो बेसिकली दे डू नॉट इवन हैव द मनी फॉर इवन सेटिस्फाइंग देयर मोस्ट बेसिक नीड्स। ठीक है, तो ये एक चीज हमें देखने को मिली कि सिस्टम इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाता है। बीपीएल जो है सिंपल बीपीएल एपीएल कैटेगराइज करके ले आते हैं हम पॉवर्टी लाइन के थ्रू, और एपीएल में कैटेगराइज होने के बावजूद जो है कंडीशन बिल्कुल सिमिलर हो सकती है अंत्योदय जैसी भी। तो कोई गारंटी मैकेनिज्म चाहिए, ये जो है परफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। थर्ड जो हमें मिला वो था फीमेल मेंबर्स के लिए। फीमेल मेंबर्स के लिए आपने देखा मैंने कितनी कन्वीनियंटली बोल दिया कि या तो मैं ₹1,000 पर पर्सन पर मंथ लिख दूं, या फिर मैं ₹4,000 पर पर्सन, सॉरी पर हाउसहोल्ड, 4,000 पर हाउसहोल्ड पर मंथ लिख दूं। और मैंने कितनी कन्वीनियंटली अज्यूम कर लिया कि इस हाउसहोल्ड में 4 लोग हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, और मैंने कन्वीनियंटली अज्यूम कर लिया कि इनके बीच में इक्वालिटी का प्रिंसिपल होल्ड हो रहा है, सबको इक्वल शेयर मिल रहा है, इक्वल शेयर मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो क्या ये पॉसिबल है? इक्वल शेयर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ये तो फेयर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर is not measured, rather assumed in a male dominated country. A male dominated society, which is again an irony, which is again very wrong. तो ये 3 लिमिटेशंस है बेसिकली पॉवर्टी लाइन के, कि मेजर करना तो छोड़ो, ये तो बेसिकली ओवरलुक ही कर दे रहा है पूरा का पूरा। ये तो अज्यूम करके चल रहा है कि सबको फेयर शेयर मिल जा रहा होगा। तो कभी भी जेंडर रिलेटेड पॉवर्टी इश्यूज को ये मेजर नहीं कर पाएगा। जेंडर रिलेटेड पॉवर्टी इश्यूज, जेंडर रिलेटेड पॉवर्टी इश्यूज को ये मेजर नहीं कर पाएगा। यहां तक क्लियर है तो फिर यस लिख दो, नहीं क्लियर है तो फिर पूछ लो अपना डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से।
हाँ तेजस्विनी, वो ऐड कर सकते हैं, वो तो बेसिक नीड्स की लिस्ट में है। वो तो पॉवर्टी लाइन में आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, इंटरनेट ऐड कर दो, जो तुम्हारा मन करे बेसिक नीड्स में ऐड कर दो। वो बास्केट तो डिसाइड करेंगे कंजम्पशन के बेसिस पर, वो तो स्पेसिफिक होगा वो वहां पर। मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। बाकी सब लोग क्लियर है? हाँ या ना प्लीज एक बार बता दो। सो गए क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? ये सर किसके लिए कह रहे हो, सोने के लिए? कि ये सर हम सो चुके हैं, सुला दिया आज आपने। चलो दूसरे पे आते हैं। पावर्टी गैप रेशियो। पावर्टी गैप रेशियो पीजीआर। पावर्टी गैप रेशियो पीजीआर। पावर्टी गैप रेशियो को मेजर करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पावर्टी गैप, ठीक है, और फिर उसको यूज करेंगे टू मेजर पावर्टी गैप रेशियो। तो पहले डिफाइन करते हैं पावर्टी गैप क्या है। पावर्टी गैप क्या है? द एवरेज गैप बिटवीन पावर्टी लाइन एंड देयर एक्सपेंडिचर। द एवरेज गैप बिटवीन पावर्टी लाइन एंड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल इन दी केस दैट आई टुक, राइट, केस जो मैंने लिया था, इसमें मैंने अज्यूम किया था कि 3900 पे ये है, 2000 पे ये है और 1000 पे ये है। तो पावर्टी गैप क्या है? पावर्टी गैप इज दिस, राइट, and all I need to do is I just need to measure, I just need to find the average value of these three gaps. The average value of these three gaps क्या है? average value 100 ले लूं, 2000 और 3000। 100 plus 2000 plus 3000 divided by 3, this comes out to be my poverty gap। ये हो गया मेरा poverty gap। PGR क्या होता है? PGR is equal to poverty gap divided by per capita income। Per capita income। Now let me compare the formula. What exactly are we trying to measure here, right? Now when I say average gap, this is exactly the amount of resources needed to bring every BPL household to poverty line, to poverty line। और डिनोमिनेटर में क्या रखा है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? द एवरेज रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। द एवरेज रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और अगर मैं इसको मेजर करूं, राइट, if I find that PGR is high, PGR is high, what does PGR high would mean? PGR high would mean that my numerator is higher, my numerator is higher, numerator higher would mean that depth of poverty is higher, depth of poverty is higher, and if my denominator is also low, this would result in higher PGR,
If my denominator is also very low, this would result in higher PGR, which means from economy point of view, the overall resources available are also low. Which is again problematic. So ideally क्या होना चाहिए? Ideally we should try and lower down PGR in the economy. क्या दिखेगा ये? 1 से ज्यादा दिखेगा, 1 से कम दिखेगा? 1 से ज्यादा दिखेगा, 1 से कम दिखेगा? आइडियली बहुत ज्यादा दिखेगा 1 से. This is going to be much higher than 1. और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? टू ब्रिंग इट डाउन टू 1. ठीक है. नेक्स्ट आता हूं HCR, थर्ड पैरामीटर, हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूं. HCR क्या है? HCR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अर्जुन. कम कैसे हो सकता है 1 से? अगर कम होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. आइडल में कम होना चाहिए. सही है, अब ठीक है. आइडल केस में कम होना चाहिए. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. फिर क्या करूं? परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई दिस विद 100. दिस गिव्स मी HCR. और HCR मैंने पहले ही बताया, दिस इज बेसिकली माय परसेंटेज ऑफ BPL population. Percentage of BPL population. Percentage of BPL population. ये भी क्लियर है. फिर आता है हमारा लास्ट पैरामीटर जिसको हम कहते हैं सेन, अमर्त्य सेन पी इंडेक्स. अमर्त्य सेन पी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स. और अमर्त्य सेन को ना पॉवर्टी की फील्ड में जीनियस कहा जाता है. मतलब इनको इकोनॉमिक्स में, सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए इनको जो है अवार्ड किया गया है. इनको जो है नोबल लॉरिएट माना जाता है. एंड इज बेसिकली हिज नेम इज क्रेडिटेड that he has done extensive work in the field of poverty, right? In fact, HDI जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP का, उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको फॉर्मुलेट करने में. तो महबूबुल हक थे और यही थे सेन, अमर्त्य सेन, जिन्होंने मिलकर डेवलप किया था उसको. ठीक है, HDI को. तो यहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पॉवर्टी इंडेक्स में भी. व्हाट he does is he basically uses the idea of poverty line. He uses the idea of poverty line. Then he brings in the concept of poverty gap. So he measures poverty gap using poverty line, but only for BPL population. Right? And then what he does is he basically draws almost something that we have seen in Lorentz curve, right? Lorentz curve की तरह से बनाएंगे. ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली रिसोर्सेज और बीपीएल पॉपुलेशन को मैप कर रहे हैं. राइट? जहां पर इन्होंने रिसोर्सेज को ले लिया है, रिसोर्सेज को इन्होंने मान लिया है पॉवर्टी लाइन. राइट? मतलब मान लीजिए अगर 100 पुअर है तो 100 इंटू जो आपका पॉवर्टी लाइन का लेवल है, आपने कहा 1000 चाहिए हमें, ये इन्होंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज. राइट? इस नंबर को यहाँ रख दिया इन्होंने. और जो 1000 आपने कहा था, सॉरी 100 मैंने कहा था ना, 100 लोग हैं, 100 को यहाँ रख दिया इन्होंने, 1 to 100. और फिर इंडिविजुअली सबसे पूछने गए कि सर आपका 1000 में से आपका कहाँ पर लेवल है. ठीक है, आपका लेवल कहाँ पर है.
मतलब क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी गैप को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ पर। देखो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए ये, दैट एवरीवन शुड बी एट द लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन। और अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं इस कर्व में कितना दूर है कितना पास है, राइट। तो किसी ने बोला सर मेरा यहाँ है, किसी ने बोला यहाँ है, किसी ने बोला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इन्होंने क्या किया, इस सब पॉइंट्स का ऐसे कर्व बना दिया, इन्होंने कर्व बना दिया। ये इन्होंने कहा सर देखिए ये वाला जो पॉपुलेशन ग्रुप है 0 से लेके 60 वाला, ये 60 पीपल दे आर फेसिंग एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, दे फेसिंग एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, and thereby government will have to provide higher degree of benefit, higher degree of benefit to these people। मतलब यहां पर आपको एक नहीं, यहां पर आपको 3 स्कीम चाहिए। हमने कहा ठीक है 3 स्कीम लगा देंगे इनके लिए स्पेसिफिकली। फिर बोला सर ये वाले जो लोग हैं ये थोड़े से दूर हैं, इनके लिए आपको 2 स्कीम चाहिए, और ये वाले लोगों के लिए सर 1 स्कीम से काम हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कहता हूं, दिस इज नथिंग बट माई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। है ना, पीछे बताया ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली अप्रोच, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली अप्रोच कि जिसकी जितनी नीड हो उस हिसाब से उसको वेलफेयर दो। अब इंडिविजुअली मतलब अगर आप पर्सन बाय पर्सन पे कहोगे गवर्नमेंट को जाके उससे पूछ और उतना पैसा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है सर, हर महीने वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं एक बैंड तो बनाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वो बैंड बनाने का काम किया है, इन्होंने कैटेगराइजेशन करने के लिए हमें इंडेक्स बना के दी, जिस इंडेक्स के थ्रू हम बेसिकली देख सकते हैं कि कितने लेवल पर कितना बेनिफिट चाहिए, कितने डिग्री का बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसीलिए इस पूरे काम के लिए इनको नोबेल दिया गया है। देखो मैंने ना बहुत शॉर्ट में ये सारी चीज रख दी आपके सामने, ठीक है। मतलब लोगों की पीएचडी नहीं, पीएचडी एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे निकल जाती है, मतलब जो उन्होंने पूरा लिखा है, लोगों की पीएचडी पूरी इकोनॉमिक्स पे खत्म हो जाती है, सोशो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल टर्म को एक्सप्लोर करते करते, एक सिंगल ग्राफ को एक्सप्लोर करते करते उनका। पर मैंने अपने एंड पर कोशिश करी है कि मैं जस्टिफाई कर दूं उनको, थोड़ा सा उनका वर्क को, और आपको क्लियर टर्म से समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट को कहेंगे पीजीआर की वाली अप्रोच लो, पॉवर्टी गैप रेशियो की अप्रोच लो, तो आपने गवर्नमेंट के लिए जो टारगेट प्लेस कर दिया है दैट यू हैव टू रीच अप टिल 1, ये कहा ना मैंने 1, ये होना चाहिए टारगेट। तो उनका कहना है ये टारगेट बहुत लंबा है, ये टारगेट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसमें चाहिए। खुद सोचो 135 करोड़ हैं हम, 135 करोड़ पीपल, कितनी इकोनॉमी, 190 करोड़, 190 लाख करोड़ इकोनॉमी, डिवाइड किया पर पर्सन इनकम निकाल दिया, यहाँ ले गए इसे 135, मान लीजिए कोई भी नंबर निकल के आ गया, 2000 रुपीज निकल के आ गया। सॉरी 2000 नहीं, 1,20,000 निकल के आ गया, अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ, 1,22,25 निकल के आ गया। अब आप कहो कि साल में इतना पैसा हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास पहुंच जाए, तो हाउस होल्ड के लिए 4 लोगों से मल्टीप्लाई किया, आपने कहा सर 4,80,000 रुपये मिल जाए हर हाउस होल्ड को, सर फिर तो सारे के सारे इनकम टैक्स देना शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात। अब ये तो बहुत लंबा टारगेट है ना, दिख रहा है कि कितनी दूर पर है ये टारगेट। और गवर्नमेंट को कहें कि सर इतना पैसा देना है किसको, जिसका मंथली एक्सपेंडिचर, जिसका मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये है, जिसका मंथली एक्सपेंडिचर आपका, सॉरी जिसका मंथली एक्सपेंडिचर आपका 1,000 रुपये है, उसको आपको मंथली एक्सपेंडिचर लेके जाना है उसका कितना, 12 से डिवाइड करूं तो अप टिल 10,000 रुपीज। मतलब गवर्नमेंट कहे कि मुझको बेनिफिट देना पड़ेगा 9,000 का, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें से 50% भी मान के चलूं तो 50 मल्टीप्लाई कर दो, 9,000 इंटू कितना हो गया 35 का, 70 मान लूं रफली, 70 करोड़। निकालो जरा, पॉसिबल है क्या इतना रिसोर्स दे देंगे?
इतना रिसोर्स होगा गवर्नमेंट के पास? पॉसिबल नहीं है। ये निकली है मेरी टोटल रिसोर्सेज नीडेड। टोटल रिसोर्सेज नीडेड टू ब्रिंग एवरीवन आउट ऑफ पॉवर्टी, टू ब्रिंग एवरीवन, सॉरी, टू ब्रिंग, नॉट टू ब्रिंग एवरीवन टू पॉवर्टी, टू ब्रिंग एवरीवन टू द लेवल ऑफ पर पर्सन इनकम लेवल। ये जो लेवल है इस तक लाने के लिए, जो हमने कहा 1 होना चाहिए, इस तक लाने के लिए हमारे को इतने रिसोर्सेज चाहिए। क्वेश्चन है क्या है, डू वी हैव दीज मेनी रिसोर्सेज? नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो पॉसिबल क्या है अप्रोच? पॉसिबल ये वाली अप्रोच है जिसमें आपने टारगेट को क्या किया, आपने टारगेट को लोअर डाउन किया, आपने टारगेट को लाके रख दिया बीपीएल पे, आपने टारगेट को लाके रख दिया पॉवर्टी लाइन पर। आपने कहा पॉवर्टी लाइन से जरा कंपेयर करते हैं, पॉवर्टी लाइन है मेरी 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपीज पर पर्सन। अब मैंने कहा कितने पुअर है? आपने कहा सर कंट्री में जो आपने पीछे नंबर लिया 70 करोड़, 70 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, 70 करोड़ इंटू 1000, तो दिख रहा है ना नंबर छोटा है। वहां पर 70 करोड़ को 9000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर 70 करोड़ को 1000, 2000, 3000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आइडियली अपने आप दिख रहा है कि गवर्नमेंट के लिए टारगेट कम है, और उसके रिस्पेक्ट में जब लेने जाएंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन मेक अ स्टार्ट in order to provide benefit. If I take such high targets, government will basically run away. गवर्नमेंट कहेगा वेलफेयर मेरे बस की नहीं है, आई कांट डू दिस मच अमाउंट ऑफ वेलफेयर। गलती हो गई, इलेक्शन जीत गए, सोचा था अपना वेलफेयर कर लेंगे, यहां तुमने इतना बड़ा बजट बना के दे दिया। तो आइडियल सिनेरियो में अमर्त्य सेन का जो रोल कहा जाता है वो इसी रिस्पेक्ट में कहा जाता है कि इन्होंने जो है टारगेट्स को लोअर करके जो कैटेगराइजेशन किया है, that can help us in equitable distribution, which can be really helpful, in resolving poverty. अब अगर ये क्लियर है तो प्लीज यस लिख देना, नहीं क्लियर है तो फिर मुश्किल हो जाएगा समझाना। मजाक कर रहा हूं, समझा दूंगा मैं। पी इंडेक्स का फॉर्मूला मत देखना, मैं पहले बता रहा हूं, पी इंडेक्स का फॉर्मूला देखने लायक नहीं है। 8 अलग अलग फॉर्मूलाज मिल जाएंगे गूगल करने बैठोगे तो। लोगों की थीसिस लेके जाती है इसमें ना पीएचडी में, तो कोई पॉइंट नहीं है ना, वो पूछेगा पेपर में ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, ये दैट ही यूजेस द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी गैप, एंड देयरबाय आल्सो ब्रिंग्स इन द आइडिया ऑफ लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, वेर ही ट्राइज टू मेजर, एक चीज लिख रहा हूं बस इसको याद रखना, वेर ही ट्राइज टू मेजर inequality amongst the poor. Inequality amongst the poor. And thereby giving a better idea as to how to resolve poverty or how to tackle poverty. Sure. नेक्स्ट है बेसिकली मेरे पास हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है, पर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री देख लेंगे, मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी लाइन, फिर इसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन,
ठीक है, और फिर हम कमिटीज देखेंगे, जो सबसे रीसेंट कमिटीज आई हैं, तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी। तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, इनके रिकमेंडेशन साथ ही साथ इनके नंबर्स पर कंपैरिजन करेंगे और फिर मेजर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ कंक्लूड करेंगे हम पॉवर्टी को। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे में निपट जाएगा ये टॉपिक। फिर चलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई होप आज मजा आया क्लास में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉवर्टी एक्चुअली, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को मुलाकात होती है, ठीक है ना। और अब तो एग्जाम डेट भी मोस्ट प्रॉब्ली शिफ्ट हो ही रही है, खुद ही नहीं पता अभी तो कब तक, कब कितना पीछे जाएगा, तो इतना कोई इशू भी नहीं है तो सिलेबस का। ठीक है, 2 वीक में खत्म कर दूंगा मैं, नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगा मैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक।